I think you just heard a little feel of the music that will make its way through your ears just as we begin with the mainstream program. But for now, feel free with the conversations, feel free and be in the moment. I think it will be a very pleasant evening to remember. So as we check our energies on the mic, I think you all can, whatever we are here for, we'll have the vibes once we have the launch done. So for now, this is the time that you can just Okay, thank you. chill. सर सामने देखो सर सर यहाँ पे सर 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 राइट में सर सर वन मोर राइट सर सर यहाँ पे सर वेट लाइट चल दो लाइट पीछे नहीं हो गए वीडियो वाले तो मैं आगे आ रहा हूँ। कर को भाई यार Thank you so much. Well, we already have women right out here. Can we please request Surendra Pal, if is in the house, the very famous actor, Mr. Surendra Pal, to take up the stage. Bap re bap. Wow, ladies and gentlemen. Thank you so much, Mr. Pal, for joining us. You know, this makes it even more stellar. Thank you. Can we please have Soma Rathore ji? Producer Casey Bukhadia, if I'm right with the pronunciation, please request you to also take up the stage for the lamp lighting ceremony. Soma Rathore ji, Amma ji from Bhabhi ji Ghar Pe Hain, please. Aapse bhi request hai, if you're there, shortly join us. And could we please also have, if you have Salim Zaidi. If you are there, Salim Zaidi, known as Tillu from Bhabhi ji Ghar Par Hain. Woohoo! Everybody, thank you so much. Wow. Ladies and gentlemen, I will fail in my duties if I do not invite one woman I look up to, the noted producer of Bollywood, right out there from Bollywood industry, Ms. Manju Bharti. Ladies and gentlemen, the very stunning, the very gorgeous, always with a smile on her face, walking up the stage. And can we also have the noted actor who makes a style with every statement that he takes, Mr. Mukesh Bharti, could we have you on the stage as well? Thank you so much. Mr. Shadab Akhtar, the lyricist of the movie, we would love it if you take the stage as well. Shadabji, thank you very, very much. With so much of power in the house, Pavanji, can we please request you to get started with the lamp lighting ceremony, followed by all our special guests on the stage to join him for the beautiful ceremonial lighting of the lamp. And could we please have... Can we have all of you taking the center stage? Because aaj wo din hai. With all the toil, jitni bhi mehnat that has gone behind in making the film, ladies and gentlemen, that is actually really, can you believe it, the last film that has been shot in Ukraine right before, unfortunately, that war that started. So आपकी जो गुफ्तगू है, आपका जो उत्साह है, उसे बिल्कुल भी कम ना होने दें. Because all we need is love, for love in Ukraine. And of course we will have, we will talk with you all, we will have some very beautiful moments. But right now,
join us on the stage, please. Thank you very much, राकेश जी. जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं राकेश जी का मंच पर. Let's invoke the blessings of the Almighty, and may we continue to burn bright with this flame of knowledge and blessings. Indeed, a beautiful start. Thank you so much to our dear guest on the stage for doing the honors. Can we also have Binoy Gupta, sir, Chief Commissioner of Income Tax, also please joining us on the stage. Please, sir, request you to join us on the stage. And he's the father of Mr. Nitin Gupta, so it's such a pride and a happy thing. Thank you very much to all our dear guests for joining us on the stage. Thank you for all the love. Guests, we request you to please take your seats quickly because इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे गणेश वंदना से. So we would if we will see you on the stage. Thank you. राकेश सबरवाल जी, आपको भी हम आमंत्रित करना चाहेंगे इस मंच पर, जो कि इस समय I would say जगमगा रहा है सितारों से, आप जैसे the very diligent, the power right there of our Bollywood industry, ladies and gentlemen. Thank you so much for the love. We are celebrating the trailer launch of Love in Ukraine. अब से कुछ ही देर में you would witness the trailer of the film that has been the last to be shot in Ukraine right before the situation went in wartime. So I think इतनी incredible performance और इतना iconic, मैं कहना चाहूँगी, जो इतिहास इस फिल्म से जुड़ा हुआ है. आज एक ऐसी शाम है that we will give you a glimpse of what all we celebrated, what all we made, with some Zabardast performance from Vipin, who's the lead actor in the film. Standing tall, everybody give it up for the people behind it and our special guest on the stage. और ये मीडिया की तरफ से जो उमड़ता हुआ सैलाब है प्यार का, I think we really love it. Thank you. You know what? They are right. On my countdown, everybody who's there in the house, who's celebrating today the trailer launch, we all will smile. ठीक है? So on my count, we all will smile widely. 3, 2, 1. Let's smile. I want some more smiles in the house. Aha. That's more like it. Thank you. Thank you for the love. Thank you. Sir on stage, director of movies like Desi Katra, Zilla Ghaziabad. As you know, our film Love in Ukraine is a romantic film with action, और इसमें 5 गाने हैं. ये पूरी की पूरी बॉलीवुड म्यूजिकल है. इसमें रोमांटिक गाने हैं, फन गाने हैं, डांस गाने हैं, एक्शन गाने हैं. और आज हम पूरे गाने तो रिवील नहीं कर रहे, लेकिन हमारे 2 सिंगर्स आपको गाने की कुछ पंक्तियां सुनाएंगे. पहला गाना है जुदा जुदा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग बिकॉज हमारी मूवी में 2 कैरेक्टर्स हैं, एक इंडियन और एक यूक्रेनियन.
एक इंडियन और एक यूक्रेनियन जो एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते हैं, वो रंग से भी अलग हैं, देश से भी अलग हैं और भाषा से भी अलग है। तो ये गाना है जुदा जुदा। दिव्यांजलि इसकी कुछ लाइनें आपको सुनाएंगी। ये गाने के लिरिक्स लिखे हैं शराब अख्तर ने, जिन्होंने काफी फिल्मों के लिरिक्स लिखे हैं। दिव्यांजलि प्लीज। Good evening, everybody. Today it's my immense pleasure to sing few lines from this beautiful film Love in Ukraine, जिसका मेलोडी बहुत अच्छे से नितिन ने कंपोज किया है और श्रद्धा जी ने बहुत अच्छे से इसके अल्फाज लिखे हैं. So I'm just going to be singing few lines from this beautiful song. ख्वाहिशें जुदा जुदा, मंज़िलें जुदा जुदा, रंग है जुदा जुदा, ज़ुबान है जुदा जुदा, जुदा 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 जुदा. निगाहें गई दिल, जान गए दिल, प्यार का है सिर कोई गहरा नशा, दो अजनबी दिल क्या एक होंगे कल. Thank you so much. And now this song from the film. One you're shooting, if I'm not wrong, right? And this is your debut film. Debut release. How do you feel about it? चांद क्या रोशन करे जब सितारे पहुंच चुके हों. मुझे लगा एक नया लड़का कौन ट्रेलर लॉन्च देखने आएगा, लेकिन आपने इसे ट्रेलर लॉन्च बना दिया. थैंक यू सो मच ऑल फॉर कमिंग हियर. थैंक यू. जब हम यूक्रेन में थे तो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का रोल निभाया और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से मिला भी. तो जब जंग छिड़ी तो मेरे ख्याल से भारत में मैं अकेला एक्टर हूँ जो क्या फील कर रहे हैं स्टूडेंट्स उसको महसूस कर पा रहा था लगातार बार बार. क्योंकि जब कोई लड़का आपके अपने देश का विदेश में जाता है और इस तरह की इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस सिचुएशन में फंस जाता है तो दोस्त याद नहीं आते, परिवार याद नहीं आता, सिर्फ अपना देश याद आता है, भारत याद आता है. और मैं वेजिटेरियन हूँ और खाना मुझे नहीं मिल रहा था वहाँ पे उस तरीके का, तो सबसे पहले मुझे भी भारत ही याद आया था. खैर मेहनत की, जैसा कि आपने देखा, अब आप ही बताएंगे कि कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत लगी थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी और बहुत सुंदर शहर था, बहुत सुंदर लोकेशंस जो कि आपने अभी इसमें ट्रेलर में देखी, टीजर में देखी. हाँ जी सर, लड़कियां भी सुंदर थी. खैर शहर मैंने ज्यादा देखा, पिताजी ही बैठे हैं अभी. हाँ बहुत सुंदर लोकेशन. इनफैक्ट एक लोकेशन है जिसका मैं भी जिक्र करूँ तो बूचा नाम, आपने सबने सुना होगा बूचा. हम जहाँ रह रहे थे वहाँ से लगभग 2.5 घंटा दूर थी और ब्यूटीफुल लोकेशन, एंशिएंट लुक, पुराना आर्किटेक्चर सब. अच्छा इस बीच अच्छी चीज़ ये रही कि जो मेरे क्रू वाले हैं, मेरी उनसे बातें होती रही. मैं लगभग हर हफ्ते उनको मैसेज करके पूछता रहता हूँ आप सब ठीक हैं, आप सब ठीक हैं, आप सब ठीक हैं. अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन एक
हो जाती है, जब दोस्ती हो तो थोड़ी चिंता हो जाती है, लेकिन खैर सब सही सलामत हैं। जिन जिन का हमें पता लगा तो अच्छी बात फिलहाल ये है, और भगवान से तो प्रार्थना है कि अब जंग खत्म हो और मेरे तरह आप सब भी इस सुंदर देश को देख पाए। Vipin, we wish you all the very best for the film. हाँ, मैं यही करने वाला था कि आप सब जो कहते हैं वो सुनने की कोशिश में हूँ, अब ज़रा मैं चुपचाप रहने की कोशिश में हूँ और मेरे ख्याल से बहुत कुछ कहा जा चुका है, बस इसी बात को कहने की कोशिश में हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है विपिन, आपको स्टेज छोड़ने से पहले it's just a very quick one, if they allow. I'll play a very quick rapid fire with you. Are you ready for it? All right. इनसे खेली जाए rapid fire. So the rule of the game is very simple. The first thing that comes to your mind, जैसे ही मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, वो जवाब आपको देना होगा. And here you go. On your mark, get set, go. Tell us the best thing about Ukraine. Girls. पिताजी अभी भी सुन रहे हैं. Okay. विपिन, आपका फेवरेट डायलॉग आपकी मूवी से है, डेब्यू फिल्म लव इन यूक्रेन. गो फॉर इट. डेब्यू फिल्म लव इन यूक्रेन, फेवरेट डायलॉग, मेरा फेवरेट डायलॉग एक है, एक्चुअली एक मेरा फेवरेट डायलॉग है, लेकिन वो मूवी के आखिर में आपको सुनाई देगा और मैं सच में आपको अभी नहीं सुनाना चाहूँगा. Let us keep that as suspense. क्या हम थोड़ा सब्र कर सकते हैं? कर सकते हैं? Thank you. चलिए, I would have asked you the second favorite dialogue, but ठीक है, we'll give this a pass. Funniest moment on the sets? मेरा डायरेक्टर ATM में लॉक हो गए थे. हाँ. और वहाँ पे उबर चलती है, ये मुझे वहीं जाके पता लगा था. God, okay, that's crazy. Great. What is that one line जो आप सबके लिए कहना चाहेंगे who are watching you right now, and of course for the starry applauses that they made for your debut. इन सब के लिए कोई पैगाम? एक लाइन नहीं, एक शब्द है, धन्यवाद. तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद आप सबका, आप सभी का. थैंक यू सो मच, थैंक यू. क्योंकि एक नए लड़के के लिए उसकी पहली फिल्म और ये महफिल कमाल हो गया, कमाल हो गया. जैसा कि मैंने कहा, आपने ट्रेलर को लॉन्च कर दिया. थैंक यू. Thank you, Vipin. All the very best. We are so proud of you. So proud of you. Give it up for the lead actor, ladies and gentlemen, of Love in Ukraine. That's Vipin Kaushik introducing him. Thank you for all the love. Thank you so much. All the love right back to you. Thank you. And with that, very quickly, we love it when you make a lot of noise. Thank you. What a grand trailer launch, starring Vipin Kaushik in Love in Ukraine. The producers of the film, Pawan Kaushik ji, on the stage. Thank you so much. Mr. Surendra Pal, the famous actor, of course, as you know, ladies and gentlemen. K.C. Bukadia ji, will we please have you on the stage as well? Nitin Kumar Gupta, Vishal Sharma, Vipin Kaushik, Manoj Sharma ji, please मंच पर आ जाएं. हमें मौका दें आपको. The talented Vipin also on the stage, जिन्होंने बहुत सारे शायरियों से हमारा दिल भी लुभाया. Manju ma'am doing the honors there. The one who took the release of the much awaited the bouquet to the head honchos of the film and also our special guest, Nishan Malkani, right here on the stage. Ladies and gentlemen, keep clapping. The film Love in Ukraine is produced by Kamal Entertainment and Neoli Films.
our producers, the very well-known astrologer, so many followers, the very amazing Pawan Kaushik ji, and also joined by his wife Babita Kaushik ji. It's written and directed by the very creative Nitin Kumar Gupta, the captain of the ship, in association with Vishal Sharma. He's not here with us, but thank you so much. Released by Vivek Films Production House. We'll very shortly be starting with the media bites. Sanjay Sharma ji, can we have you on the stage? Could we please have Naira Banerjee joining us on the stage for the felicitation ceremony and the photo opportunity. Ladies and gentlemen, we are opening the house for the media bites and the media interaction right after this photo. लव इन यूक्रेन काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेलर लगा। आप लोग से जानना चाहूँगा किस तरह का ट्रेलर आपको और मुझे लगता है बहुत अच्छा ट्रेलर था और दिल से दुआएं कि लव इन यूक्रेन 27 मई को रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पर यूँ कहना चाहूँगा कि लव तो यूक्रेन में है, लेकिन लक जो है वो 27 मई में है। अब देखते हैं क्या होगा। मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और काफ़ी टाइम के बाद इस टाइप का सब्जेक्ट लग रहा है, थोड़ा नया सब्जेक्ट आ रहा है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और मज़ा आने वाला है ऐसा लग रहा है। आपको ट्रेलर में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? कोई ऐसा पार्ट विच वॉज वेरी गुड? देखिए, जो अभी बात कर रहे हैं ट्रेलर की, तो यहाँ पर दोनों ही नौजवान हैं, दोनों ने जो कोशिश करी बहुत अच्छी करी है और कहीं ना कहीं से इंसान आगाज़ तो करता ही है। तो मैं समझता हूँ डेब्यू के हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेलर था, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। विपिन कौशिक की जो एक्टिंग है आपको कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी और गुड लुकिंग है, बहुत अच्छे टॉल हैंडसम है तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत पसंद आने वाले हैं लोगों को और बहुत फेमस होने वाले हैं। विपिन के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, दिल से दुआ है कि जिस तरह से उनका कद है, ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में उनका कद हो, बुलंदी हासिल करें। जिस तरह वॉर चल रहा है यूक्रेन में, इस तरह की मूवी लाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या लगता है? ये सच में सोमा जी, मतलब यूक्रेन में जितनी तबाही हुई, जितनी लड़ाई हुई और स्टूडेंट पे कितना जुल्म हुआ, हमारे हिंदुस्तान के बहुत से लोग वहाँ फंस गए थे। ऐसे में रहकर वहाँ शूट करना और फिल्म मुकम्मल करना और फिर उसे रिलीज़ भी करना काबिल तारीफ़ बात है। और आपके शो को जिस तरह का प्यार हमेशा मिलता है, हमेशा मिल रहा है, आप कुछ 2 लाइनें फैंस को क्या कुछ कहना चाहो, क्या मैसेज? पहले आप कह दीजिए। आज हम बहुत खुश हैं काहे हमारा भाभी जी घर पर है, सबको बहुत अच्छा लगता है। जितने भी नल्ले लोग हैं, बैल लोग हैं, बहुरियाँ हैं, बिटियाँ हैं, सबको बहुत पसंद है। तो हम सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और पंडित रामफल से जो है सबके लिए बढ़िया से पाई पूछ लेंगे। और कसम खा के कह रही हूँ भैया, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पता न चला कि 7 साल कैसे गुजर गए, 2000 एपिसोड होने को आ गए। और अम्मा जी कसम खा के कह रही हूँ, आपका लौंडा जो है तिवारी, इतने टाइम से मैं नौकरी कर रही हूँ, 6 महीने की तनख्वाह डकारे बैठा हुआ, एक बार मेरी तनख्वाह दिला दो अम्मा। मैं आपको रोकूंगा, थोड़ा उधर जाना है मुझको, प्लीज। अच्छा अच्छा, सॉरी मैं बीच में ओके, हो गया? आप लोगों से चलिए वहाँ। हाँ हो गया, यही ले आए। स्टार्ट करें? बोलना मुझे है तुम्हें? मुझे बोलना है? हाँ? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? आपने ट्रेलर देखा और जिस तरह का माहौल यूक्रेन में चल रहा है, आपको लगता है कि इस तरह की फिल्म एक पीस और लव का मैसेज देगी जो इंडिया में लोग रहते हैं, जो यूक्रेन में रहते हैं वहाँ के? सबसे पहले तो मैं विपिन कौशिक जी को, जिन्होंने इस फिल्म के द्वारा डेब्यू किया है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा।
इस लड़के के बारे में मैंने यही कहा था बहुत साल पहले कि मैंने कहा अभी तुम बच्चे जैसे दिखते हो। करीब 3-4 साल पहले की बात है जब मैं गुड़गांव में मिला था इसे, और उसके बाद मैंने ये कहा था कि यू हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। और आज भी मैं कहता हूँ कि इस लड़के में जब अमिताभ बच्चन नए नए आए थे तो वो जो झलक है वो इस लड़के में वो झलक मुझे देखने को मिली। और इस फिल्म के जो आज ट्रेलर रिलीज़ हुआ है लव इन यूक्रेन, लव के ऊपर जितनी भी फिल्में, प्यार के ऊपर जो फिल्में बनी हैं अभी तक, वो सभी बहुत बड़ी सुपरहिट हुई हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लव इन यूक्रेन भी जो है बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित होगी इस देश में भी। और अभी जो ट्रेलर देखा है उसमें बहुत अच्छा काम किया है। डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस शूट की हुई हैं इस फिल्म के अंदर। और डेब्यू फिल्म है, और डेब्यू फिल्म में जितनी भी लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड होकर बनी हैं वो करीब करीब सभी हिट हुई हैं। और मुझे इस फिल्म से भी पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट होगी इस लड़के के लिए। और विपिन को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मेरे मित्र पवन कौशिक जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने अपने अथाह परिश्रम से इस फिल्म को कंप्लीट किया है। और इसके डिस्ट्रीब्यूटर, इसके प्रोड्यूसर्स को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि एक अच्छी फिल्म, एक साफ़ सुथरी फिल्म हमें भविष्य में देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहूँगा, इतने बड़े बड़े एक्टर्स प्रेज कर रहे हैं और ट्रेलर देखने के बाद और भी ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है। आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, और जब इन एक्टर्स से इस तरह का जब रिस्पॉन्स मिलता है तो कैसा लगता है? डेफिनेटली मज़ा आता है, डर लगता है और अच्छा लगता है। अभी बस 27 मई का इंतज़ार है कि एक्टर्स सर के द्वारा दिए गए कॉम्प्लीमेंट्स पब्लिक दे, मुझे उतना ही सराहे और फिल्म को बहुत प्यार करे। आचार्य द्रोण का आशीर्वाद मिला है, अच्छा ही होगा। हाँ, अर्जुन हो तुम मेरे, लक्ष्य साधो। और पहली फिल्म है, इसके बाद अभी 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 तो पार्टी शुरू हुई है, आगे बहुत कुछ करना है और बहुत अच्छा करना है। और कहते हैं पहली फिल्म अगर हिट हो जाए तो वाह वाह हो जाती है, और ये फिल्म डेफिनेटली हिट होगी। और शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है हमारा, और सबका आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, पवन कौशिक जी का आशीर्वाद है। अगर फिल्म करने का एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? ये आपकी डेब्यू फिल्म में नर्वसनेस थी या फिर कैसे आपने पूरा शेड्यूल में किया, थोड़ा सा अगर बता दें। बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, बहुत टाइट शेड्यूल था। हम सुबह 6 बजे उठते थे, 5 बजे उठते थे, और रात को 11 या 12 बजे हम सो पाते थे। मतलब पूरे 45 दिन, 40 दिन के टाइम पीरियड में मैंने 6 घंटे की ही नींद ली है। खैर वो बात अलग है, लेकिन इस बीच मुझे जो महसूस हुआ वो था एक अकेले लड़के का वहाँ पे डर। क्योंकि मैं सुपरमार्केट जाता तो मुझे वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता, मैं ऊबर करता, टैक्सी करता कहीं जाने के लिए तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती, क्योंकि सब कुछ उनकी भाषा में था। और एक चीज़ मुझे लगी कि हम भारत में हमारी भाषा में ये सब क्यों नहीं करते? कोई वहाँ पे अंग्रेज़ी नहीं बोलता, सब अपनी ही भाषा बोलते हैं, किसी को अंग्रेज़ी से कोई लगाव नहीं है। अगर उनसे बात करनी है, बेशक उन्हें अंग्रेज़ी आती हो तो भी वो आपसे अपनी भाषा में ही बात करेंगे। और मैं भी चाहूँगा कि भारत में ये सब शुरुआत हो पाए, ऐसा हम भारत में इतना गर्व के साथ हम अपनी भाषा को आगे रख पाएँ। और प्यार की कोई भाषा नहीं होती है, प्यार की एक ही भाषा होती है, सिर्फ प्यार होता है। अच्छा, इस और वो प्यार लव इन यूक्रेन में दिख रहा है। बिल्कुल। और कोई भी नर्वसनेस नहीं दिखी मुझे, पूरा कॉन्फिडेंस दिखा तुम्हारे अंदर मुझे, वो आत्मविश्वास दिखा मुझे तुम्हारे अंदर, और नर्वसनेस तो कहीं भी नहीं दिखी। और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि तुम 6 घंटे नहीं सोए हो, ऐसा भी नहीं दिख रहा है मुझे फिल्म के अंदर, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, खैर, लव इन यूक्रेन में आपको लव और यूक्रेन दोनों देखने को मिलेगा, सुंदर यूक्रेन देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ मुझे एक चीज़ की वहाँ पे एहसास भी हुआ, जब वहाँ पे अकेले लड़के को अपना देश याद आता है, सबसे पहले अपना देश। तो जब ये जंग छिड़ी और ऑपरेशन गंगा के तहत बाकी स्टूडेंट्स को निकाला गया, तो मेरे ख्याल से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं पहला या अकेला एक्टर हूँ इस देश में जो इस दर्द को समझ पा रहा था और इस खुशी को समझ पा रहा था कि सबसे पहले
दो देशों की जंग 6 घंटे के लिए अगर कोई देश रुकवा सकता है तो वो भारत देश है। और क्या क्या गर्व, क्या क्या छाती चौड़ी हो जाती है जब हम ये महसूस करते हैं। यूक्रेन, रशिया दोनों शांत बैठ गए सिर्फ इसलिए कि भारतीय स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स अपने देश लौट सकें। कमाल की बात थी, मज़ा आया था ये देखकर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मेरा धन्यवाद और एक सलाम, जिस हिम्मत से उन्होंने ये काम करके दिखाया था। अब इसमें दो मत हो सकते हैं, लेकिन एक लड़का जो विदेश में है, जो अपने परिवार से नहीं कांटेक्ट कर पाता, अपने दोस्तों से नहीं कर पाता, उसकी उम्मीद एक ही है, आपका देश भारत। मज़ा आया। ऑपरेशन गंगा जब हुआ, मैं गर्वान्वित था मेरे देश के लिए, और यही महसूस मैंने वहाँ पर भी किया। भारत का जब मैं नाम लेता था तो कोई नीची निगाहों से नहीं, बल्कि ऐसे देखते थे कि अरे आप इंडिया से हैं। मैंने कहा जी मैं इंडिया से। थैंक यू सो मच। ओके, सो 27 मई को रिलीज होने वाली है आपकी पहली मूवी है, तो आप एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, क्या कुछ फीलिंग्स है? क्योंकि 21 डेज बाकी है अभी, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? शरीर के अंदर चींटियाँ जो है ना, वो हर रोज़ दौड़ती रहती हैं। 27 मई तक मेरे ख्याल से ये दौड़ती रहेंगी। और जिस हिसाब का प्यार इस फिल्म को मिल रहा है, पोस्टर लॉन्च होते ही पूरा देश जान चुका था कि लव इन यूक्रेन एक फ़िल्म आ रही है। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने इस फिल्म को उठाया, जो मेरे ख्याल से नहीं उठाती हैं। न्यूज़ में इवन मैंने ANI की वेबसाइट खोल के देखी तो मैंने देखा बॉलीवुड में लव इन यूक्रेन नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा निराश हो गया था। तो मैं ऐसे ही ढूंढता मैंने हॉलीवुड सेक्शन खोला, उसमें लव इन यूक्रेन थी। कमाल था। ये मेरा अब तक का एक्सपीरियंस कमाल रहा है, बेमिसाल रहा है। और जिस हिसाब से आप लोग आए हैं, आप लोग प्यार दे रहे हैं, लग रहा है ये 27 क्या अगले 27 साल तक ऐसा होने वाला है। थैंक यू। And what do you want to say about your co-star? He is not here right now. इस तरह का एक्सपीरियंस एंड what kind of bond do you share? मेरे को-स्टार्स को अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी बहुत सारी, तो जिस मुश्किलात से हमने इस फिल्म को शूट किया कि हम एक सीन को 3-4 बार रिकॉर्ड करने से पहले उसे 3-4 बार फिर से दोबारा उसको रिहर्स किया करते थे। और मेरे ख्याल से आप नहीं पहचान पाएंगे कि इन्हें हिंदी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती जब आप फिल्म देखेंगे। तो मेहनत 3 गुना लगी, 4 गुना लगी, लेकिन काम हुआ और मज़ेदार हुआ, अच्छा हुआ। मंजू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का टॉपिक है, जैसे मैंने सुरेंद्र सर से भी पूछा था कि एक पीस और लव का मैसेज देगी, और क्या थॉट प्रोसेस था इस तरह के प्रोजेक्ट में आप लोगों ने, मतलब यहाँ इस फिल्म में लव इन यूक्रेन में मैं एज एन रिलीजिंग पार्टनर आई हूँ। तो उससे पहले रिलीज़ पार्टनर जुड़ने से पहले मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। मेरी 3 फिल्में मैंने खुद प्रोड्यूस की हैं, रिलीज़ की हैं। सो मैं एक प्रोड्यूसर का पेन महसूस कर सकती हूँ कि फ़िल्म बनाना एक लोहे के चने चबाने जैसा होता है, बट उससे भी ज़्यादा जो बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। और हर प्रोड्यूसर का एक सपना होता है कि जब वो कोई प्रोडक्ट बनाता है और वो प्रोडक्ट जब बन के रेडी रहता है और रिलीज़ नहीं हो पाता है, तो जो दुख होता है, जो पेन होता है, वो मैंने फ़ील किया। और मैं गुरुजी को बहुत आदर्श मानती हूँ। और जब मुझे बात पता चली कि फ़िल्म रेडी हुई है और विपिन उसमें मेन लीड में है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर वहाँ एक दुख भी था कि फ़िल्म रिलीज़ क्यों नहीं हो रही है। सो मैंने एक फैमिली बाउंडिंग है हमारी, मैंने बहुत मेहनत की, कुछ प्लानिंग की, और मैंने फिर गुरुजी से कहा कि वी विल रिलीज़ दिस फिल्म। सो एक टीम वर्क है और फिल्म बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, एंड विपिन का काम बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस है। कहते हैं कि कॉन्फिडेंस है, मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है कि फ़िल्म रियली बहुत पसंद आएगी आप सबको, और डेफिनेटली फ़िल्म हिट होने वाली है। एंड विपिन हमारा आने वाला सुपरस्टार है। सो बस एक सपोर्ट है हम लोगों की, और एक फैमिली की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी कि इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं, और फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। सो आई एम सो हैप्पी। सी फिल्म जो है पैन इंडिया रिलीज़ हो रही है, एंड वी हैव अ वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स। वी हैव अ नंबर टॉप 10 में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे साथ, और फिल्म बहुत ही बड़े स्केल पर रिलीज़ हो रही है, और आप सबको आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में फिल्म देखने को मिलेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। जानना चाहूँगा कितना इमोशनल मोमेंट है डेब्यू करने जा रहे हैं, और क्या आपने कोई टिप्स शेयर की थी विपिन से, अगर उस बारे में कुछ बताएं? देखिए, अगर आप बात करें तो ये जर्नी स्टार्ट होती है। मैं पहला धन्यवाद तो नितिन को बिल्कुल देना चाहूँगा कि इन्होंने मतलब जो है
नितिन कहाँ गए हैं? इधर बैठे। तो इन्होंने जो है बाकायदा ऑडिशन में इस लड़के को जो है लिया और इस पे विश्वास किया। लेकिन उससे भी अगर हम पीछे चलें तो सुरेंद्र पाल जी की मुलाकात हुई थी इस बच्चे की, तो आशीर्वाद लेने गया था सुरेंद्र पाल जी के साथ, और उस दिन को मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। इन्होंने ये कहा था कि यह आने वाला अमिताभ बच्चन है। तो सुरेंद्र पाल जी का आशीर्वाद जो है बिल्कुल इसके साथ है। जब पहली फिल्म में जैसे ही काम मिला तो मैं सुरेंद्र पाल जी को ही ढूंढ रहा था, फ़ोन करके मैं बात करूं। तो इन्होंने काफ़ी पहले बताया था कि लड़के में टैलेंट है और लड़के में मतलब एक उस लेवल पर जाने की सारी संभावनाएं हैं, तो आप निश्चिंत होकर जो है इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि अच्छा काम करेगा। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई, फिल्म बन के आ गई, नितिन अपनी टीम को लेके चला गया, इनको लेके चला गया, तो वहाँ पे जो भी समस्याएं आई, यूक्रेन में वॉर था, वॉर के बीच में मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता था, इनकी शूटिंग चल रही थी, तो एक एज पेरेंट्स हमें डर था, उसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि रशिया तो घेरे खड़ा है यूक्रेन को, यूक्रेन में फिल्म शूट हो रही है, तो डेफिनेटली एक डर था। और मैंने डर महसूस किया कि जो बाकी पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, कि मेरा जो बेटा है वो तो रियल लाइफ में स्टूडेंट है, एक फिल्म करेगा आ जाएगा। वहाँ पे रियल लाइफ वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे थे जो वहाँ पे फंसे हुए थे और वो उम्मीद कर रहे थे अपने देश से कि हमें किसी तरह हमें भारत देश की धरती पर पांव रखने का मौका मिल जाए। तो एज ए पेरेंट्स मैंने महसूस किया, एज ए स्टूडेंट विपिन ने भी महसूस किया, और उसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश की सरकार कितनी सक्षम है, हमारा देश कितना सक्षम है, ये हमें पता तब लगा जब वहाँ पे जो है मिसाइलें, गोले वहाँ पे गिर रहे थे और हमारी सरकार उन बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल के ला रही थी। तो हम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत देश में हैं। और नितिन, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इसे मौका दिया फिल्म में, और आपकी और दोनों फिल्में इन्हीं की हैं। जो 2 फिल्में विपिन ने अब तक की हैं, दूसरी फिल्म भी कंप्लीट है, तो ये इस फिल्म से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विपिन को, तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं। और दूसरी बात, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मतलब मुंबई में ठीक है मैं आता हूँ, एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये मेरा कोर फोर्टे है। तो जब शुरू में जब विपिन पढ़ता था, एक स्टूडेंट था रियल लाइफ में, तब मैंने इसमें संभावनाएं देखी। इसने चाहा कि भाई मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू डू द मार्शल आर्ट्स, तो बिल्कुल मैंने कहा जी आगे बढ़ो। तो इसने जो है ब्लैक बेल्ट है डाउन टू, और इसके अलावा इसने मतलब जो हरियाणा का भी चैम्पियन रहा, दिल्ली का भी चैम्पियन रहा ताइक्वांडो में। उसके बाद इसने प्लेज करने शुरू किए, थिएटर करना शुरू किया, तो थिएटर पे भी एक प्रभु की असीम कृपा है कि इसको वहाँ भी लीड रोल मिला, और प्रभु की असीम कृपा है कि फिल्म में भी जब इसने एंटर किया तो एज ए लीड ही किया है। और मेरा तो एज ए पेरेंट्स तो आशीर्वाद है ही, प्रभु का आशीर्वाद है। धन्यवाद देता हूँ जी आप सबको कि आप सबका इतना प्यार, इतना स्नेह जो इस बच्चे को मिल रहा है आगे भी मिलता रहे। काम कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, और सबसे पहले तो नितिन गुप्ता बताएंगे कि काम कैसा लगा, क्योंकि ये डायरेक्टर हैं फिल्म के। अच्छा, प्रेडिक्शन भी कर दो ना, एस्ट्रोलॉजर और प्रेडिक्शन भी कर दो। नहीं, मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि ये फिल्मों में कामयाब होगा, तो मैं आज भी कहता हूँ। इससे पहले मैंने प्रेडिक्शन 2018 के लास्ट में बीजेपी की थी कि वो सत्ता में आएगी, जब सब कह रहे थे कि नोटबंदी हो गई है, जीएसटी लग गई है, बीजेपी नहीं आ सकती। वो अलग अलग चैनल्स की वेबसाइट पे पड़ी है आज भी वो स्टेटमेंट। मैंने तब भी प्रेडिक्शन की थी। मैंने भारत के विश्व कप जीतने की भी प्रेडिक्शन की थी 3 दिन पहले कि सचिन और सहवाग नहीं चलेंगे और भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। तो प्रभु ने मेरी लाज रखी, तो यहाँ भी लाज रखेगा। लेकिन पुणे में बता दूँ कि मैं बाकायदा जो है आप सबका मतलब बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा कवर कर रहे हैं और विपिन पर विश्वास कर रहे हैं। और जिन्होंने सबसे ज़्यादा विश्वास किया है मैं उनको माइक देना चाहूँगा। नितिन, हाँ जी, आप इधर आइए। नितिन प्लीज कम। इसके पहले मेरी फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो थी सयोनी, वो हमने रशिया में शूट की थी, और मेरी प्लानिंग यही थी कि ये जो नेक्स्ट फिल्म है वो भी मैं रशिया या कोई यूरोपियन कंट्री में शूट करूँ। स्टोरी सयोनी एक्शन फिल्म थी, थ्रिलर थी, और मेरा मन था कि मैं नेक्स्ट फिल्म एक रोमांटिक फिल्म बनाऊँ, प्योर रोमांस, यशराज रोमांस, जो कि आज एकदम देखने को नहीं मिलती है। आजकल बायोग्राफीज बनती हैं, आजकल हिस्टोरिकल्स बनती है, पैट्रियोटिक फिल्म बनती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रोमांस में से दुनिया का भरोसा उठ गया है। लेकिन मेरा भरोसा नहीं उठा था, तो मैंने एकदम प्योर रोमांटिक स्क्रिप्ट लिखी, और वो भी ऐसी जैसी कि एक दूजे के लिए है,
कि एक लड़का एक लड़की इंडिया के हैं जिनको एक दूसरे की भाषा नहीं आती है और उनमें रोमांस होता है। वो थॉट को मैंने लेके एक इंटरनेशनल फिल्म स्क्रिप्ट लिखी है जिसमें इंडिया और एक फॉरेनर लड़की जिसको इंग्लिश नहीं आती और लड़के को रशियन नहीं आती या कोई भी यूरोपियन लैंग्वेज, ये स्क्रिप्ट में थी। अब उसके लिए मैंने कास्ट किया पूरे इंडिया में और पूरे यूरोप में, 2-3 कंट्रीज जहाँ हमने शॉर्टलिस्ट किया था, और उससे मैंने शॉर्टलिस्ट किया। तो रिक्वायरमेंट क्या थी? पहला तो रोमांस के लिए एक कंपलसरी चीज़ है कि बेस वॉइस चाहिए ना, उसमें विपिन ऐसे पास हुआ कि इससे ज़्यादा बेस वॉइस शायद अमिताभ बच्चन के बाद किसी की आई नहीं है। दूसरी चीज़ थी कि फिल्म का क्लाइमैक्स में एक्शन है, मुझे एक्शन चाहिए था जो कि इसमें ताइक्वांडो का गोल्ड मेडल का खिताब लेके रखा था, तो फिर मुझे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तीसरी चीज़ थी कि जब सयोनी मैंने शूट किया तो मैंने देखा कि वहाँ के सारे एक्टर 6 फुट से ऊपर है। अब मुझे इंडिया में जो एक्टर्स हैं 90% एक्टर्स ऐसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि सारे 6 फीट के नीचे थे। विपिन की हाइट के कारण एक बहुत मेजर पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट वॉज कि एक्टर शुड हैव सीरियस कॉमिक टाइमिंग। जितने भी हमारे टॉप एक्टर्स हैं, भले वो अमिताभ बच्चन हो और शाहरुख खान हो, सब एक्शन भी करते हैं, रोमांस भी करते हैं, लेकिन कॉमेडी के बिना कोई फिल्म सक्सेसफुल नहीं होती है। एंड दैट वाज द टेस्ट विच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर विपिन, और उसने वो टेस्ट एकदम ऐसे पास किया, और इसलिए विपिन को हमने चूज़ किया इस फिल्म के लिए। एंड इट टर्न आउट कि ही वॉज इवन बेटर देन माई चॉइस, क्योंकि वहाँ पे जब जिस सिचुएशन में हम शूट कर रहे थे, एक तो हम सुबह से रात तक शूट करते थे, बहुत ठंडा वेदर था, और बॉर्डर पे रशियन आर्मी खड़ी है, वेजिटेरियन खाना नहीं है, ये सब मुसीबतों को झेल के विपिन ने काम किया है, बहुत एक्सीलेंट काम किया है। और विपिन के अलावा वहाँ के जितने भी एक्टर्स हैं, जो वहाँ की जो लड़की मेन लड़की है, उसको हमने एटलीस्ट 200 से 300 लड़कियों को ऑडिशन किया। उसमें भी हमारे लड़की का क्राइटेरिया तो अपोजिट था कि अगर लड़का इतना लंबा है तो लड़की छोटी होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा की जोड़ी हमारे दिमाग में थी फिल्म के लिए। ये सब करके वहाँ पे भी बहुत सीरियस कास्टिंग हुई, और फाइनली हमने जिस लड़की को कास्ट किया, जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्ट्रेस थी और परफेक्ट एज ग्रुप की थी, उसका एक माइनस पॉइंट था कि उसको ना तो हिंदी आती थी ना तो इंग्लिश। तो ना तो मैं उससे कम्युनिकेट कर सकता था, ना तो विपिन कर सकता था, और उसके बावजूद उसने भी माइंड ब्लोइंग एक्टिंग की है। और यूक्रेन की सारी टीम, मैं बता दूं, आज तक वो फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में लगे हैं, डबिंग करके भेज रहे हैं, सिंग करके भेज रहे हैं, पैच वर्क शॉट भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 27 मई का रिलीज डेट है। एंड ये फिल्म जो सक्सेसफुल या पॉसिबल हो सकी है बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर कास्ट एंड क्रू इंटरनेशनली। ये दिखाता है कि कला कैसे सबको जोड़ सकती है, भले वो वॉर जोन में हो या भले हम इंडिया में बैठे हों, सब इस आर्ट फॉर्म के लिए एकदम जुड़ के काम कर रहे हैं और लगे हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि ये मेहनत रंग लाएगी एंड दिस फिल्म विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप? हमेशा से यंगस्टर्स के साथ काम करते हुए नजर आते हैं, विपिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ टिप्स? मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस पिक्चर के अंदर जो लीड एक्टर हैं, जो विपिन कौशिक, वो हमारे भारत के हैं। इस पिक्चर के अंदर की जो भी मैंने अभी ट्रेलर देखा और जो भी पिक्चर के अंदर जो स्टोरी है, उसके साथ साथ मुझे सबसे ज़्यादा मैं इस मतलब विपिन कौशिक जी से इंटरेस्ट इसलिए हूँ क्योंकि इन्होंने जो है उस पिक्चर के अंदर एक्टिंग बहुत अच्छी की है, और जो रोल जो अदा किया है ना, वो समझ लीजिए मतलब इतना है कि मतलब लगता ही नहीं है कि इन्होंने जो है अभी ये इंट्रोड्यूस हुए हैं। ऐसा लगता है इन्होंने कम से कम नहीं तो 4-5 फिल्में कर चुके हैं ये, और आगे हमारी जो है शुभकामनाएं हैं कि ये इसी तरीके से जो है फिल्में करते रहें। और मतलब ये तो डन है कि ये सुपरस्टार बनने से इनको कोई नहीं रोक सकता, और ये बहुत मेहनत के साथ जो है ये काम करते हैं इंडस्ट्री में, और इनके अंदर जो है जिस तरीके से लगन है और हर तरीके का मतलब हर एक चीज़। और सबसे बड़ी बात तो क्या, ये बॉलीवुड के अंदर जब आए हैं ना, तो ये फुल तैयारी के साथ आए हैं। जैसे एक हीरो के अंदर जो कहते हैं कि भाई हर एक एक्टिविटीज़ होना चाहिए, मार्शल आर्ट से लेके डांस से लेके, और काफ़ी इन्होंने थिएटर भी किए हैं। तो ये सब मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हर एक एक्टर के अंदर एक खूबी होती है, तो ये सारी खूबियाँ जो है विपिन कौशिक के अंदर है। तो मैं एक बार फिर से जो है इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये सुपरस्टार बनने से इनको कोई नहीं रोक सकता, और ये इनकी मेहनत और इनके जो है
जो डैडी हैं पवन कौशिक जी, इनका बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आज जो हम यहाँ बैठे हैं तो आप सब इनकी देन है। थैंक यू सो मच। गुड टू सी यू। लव इन यूक्रेन ट्रेलर काफ़ी अमेजिंग है, क्या कुछ कहना चाहोगे, आपको कैसा लगा ट्रेलर? सी फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्रेन का जो चैप्टर है बहुत ही सेंसिटिव है एंड लव इन यूक्रेन इज़ इटसेल्फ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैंने जितना भी देखा अभी ट्रेलर, द DOP वर्क, द लुक ऑफ द फिल्म, एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल, द लोकेशंस आर अमेजिंग एंड सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। What do you want to say about Vipin Kaushik? It's a debut film. See, I really want to say that for Vipin this is a very good platform. बहुत कम लोगों को ऐसा लॉन्च मिलता है, इतना सुंदर फिल्म मिलता है एंड सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, सो उसको बहुत माइलेज मिलेगा इस चीज़ की वजह से एंड आई एम श्योर ही इज़ गोना डू रियली वेल इन द शो। और how do you think it's a perfect time for peace, love for all the Ukraine people? See, first of all, war is not a good thing. एक तो ह्यूमन लॉस होता है, इकोनॉमी लॉस होता है, लोगों के बिजनेस ठप हो जाते हैं। वॉर से हमेशा सिर्फ डैमेज ही होता है, सो इट्स आई एम सो अगेंस्ट इट। आई रियली होप दैट सबको बहुत पीस, प्यार, अबंडेंस सब कुछ मिले, जल्दी से सब लोग रिकवर हो जाए एंड पीपल जस्ट स्टे इन लव एंड पीस। Okay, so lastly, is there any upcoming project would you like to share? So 15th of May my music video is gonna be launched, the one with Gautam Gulati, वो launch हो रहा है। May end में there is another very interesting music video that is gonna come, वो हम लोग जब प्रमोशन करेंगे आपको बताएंगे। एक फिल्म की बातचीत चल रही है एंड वेब शो की भी बातचीत चल रही है। Any upcoming project with Nishant sir? सी बातचीत तो हो रही है, once it materializes I can say, so let's see. And what do you want to say to all the Raksha Bandhan family who supported you, loved you so much? I really want to say this 1 year has been so amazing for me. The journey with such amazing people on the set. जब आपके co-actors बहुत अच्छे होते हैं ना, life becomes much more easier because आप 12-13 घंटा set पे रहते हो। I think हमने तो बहुत मज़े किए, बहुत enjoy किया और हमारा रोल बहुत अच्छा था। So we really enjoyed a lot. I really miss them. Same here. Thank you so much. Thank you. हाँ कोई बात नहीं। Okay, love in Ukraine काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दिख रहा है। ट्रेलर आज लॉन्च हुआ, किस तरह का ट्रेलर आपको लगा? मुझे बड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। एक तो काफ़ी लाइवली लग रहा है, फ्रेश लुक आ रहा है इसके अंदर और फ्रेश लुक है काफ़ी और अच्छा लग रहा है और नए टैलेंट हैं और बेसिकली मुझे इसके गाने बहुत अच्छे लगे। एक म्यूज़िकल फिल्म लग रही है ये लव इन यूक्रेन, अच्छी शूट हुई है, वेल शूट हुई है और ओवरऑल इम्प्रेसिव है। विपिन कौशिक एक फ्रेश टैलेंट, फ्रेश फेस नज़र आ रहा है, किस तरह का ट्रेलर में उनकी एक्टिंग लगी? विपिन कौशिक अच्छा लग रहा है, काफ़ी इम्प्रेसिव है जिस हिसाब से अभी जो नया है उसका चेहरा, बट कॉन्फिडेंट लग रहा है मुझे काफ़ी। डू यू थिंक दिस इज अ परफेक्ट टाइम, जिस तरह यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ये फिल्म आती है तो पीस यूक्रेन ऑल द यूक्रेन पीपल? हाँ डेफिनेटली, ये क्या है कि जो माहौल अभी जो चल रहा है वॉर का और उसमें अगर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यूक्रेन में इससे एक फील आ रहा है कि यूक्रेन एक कितना खूबसूरत शहर था, जो आज क्या हो गया वॉर की वजह से सारी चीज़ें क्या हो गई, तो एक फील भी आ रहा है कि नहीं यार वहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए था और उस बीच में ये पिक्चर बनना और करना, इट्स नॉट इजी जॉब और टफ था इनके लिए। हाँ मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अभी मैं कर रहा हूँ और बट अभी प्री प्रोडक्शन में हैं, तो बहुत जल्दी कुछ जून जुलाई से शुरू हो जाएंगे प्रोजेक्ट्स। थैंक यू।
Role? Okay, firstly, good to see you, sir. You have came here for the trailer launch Yeah. of Love in Ukraine. What do you want to say about the trailer? ट्रेलर देखा मैंने, बहुत ही वेल शॉट फिल्म है एंड यूक्रेन के बारे में है. यूक्रेन का टॉपिक आजकल हर जुबान पर है. जो वॉर चल रही है वहाँ पर, वैसी ही एक वॉर दिखा रहे हैं ट्रेलर में कि उस वॉर के दौरान एक लव स्टोरी है जो पनप रही है. विपिन इज़ द डेब्यूटेंट एक्टर इन दिस, एंड विपिन के साथ एक और फिल्म मैंने की है जो अभी नेक्स्ट रिलीज़ होने वाली है. इट्स कॉल्ड LAC. इट्स अ वन शॉट फिल्म. ही इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय एंड लॉट ऑफ पोटेंशियल, but I'm sure he is very nervous right now because any debut is very exciting time for any actor. एंग्जाइटी होती है ऐसे समय पर, और अगर नहीं है तो होनी चाहिए, बिकॉज दैट कीप्स यू ग्राउंडेड, इट कीप्स यू हम्बल, इट कीप्स यू एक्साइटेड फॉर योर नेक्स्ट जॉब. सो आई जस्ट विश द होल टीम ऑल द बेस्ट and God bless them and their effort. Okay, as an actor, what quality do you see in Vipin Kaushik? See, I have interacted with him during the shoot of LAC. So he comes across as a simple boy. He's a simple guy from Delhi, and martial arts में interest है उसका. Acting, he's doing well now, आपको दिख रहा है. And I think the whole fact that somebody is hardworking and willing to learn, I think ये दोनों बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो एक्टर्स में होनी ज़रूरी हैं, वो कितना ही बड़ा एक्टर क्यों ना हो. Hard work and the will to learn has to be there, and I think he has it. Okay, so Let's see. the kind of love you received from your show Raksha Bandhan, and now people want to know what are your upcoming projects. So you would Raksha like- Bandhan मेरे लिए I think one of the best experiences of my life. It has been. I am totally in love with that show. I think जब आखिरी दिन था शूट का तो I really had tears in my eyes because that show has given me a lot, and that show came to me in my life when I really needed something where I could just perform and feel free. So it was a great time, and I really hope that वैसा एक show दोबारा जल्दी मैं करूँ. In the meanwhile, I am shooting for some music videos. There are few web series, कुछ shoot होने वाली है, एक दो release होने वाली हैं. All in the process of next few months. So we'll definitely talk more about that later. Show, yes, there is one in talks. It's very, very nice. It's a superb show. But it's going to start around a little later this year. So I'm really looking forward to that. Thank you, sir. Thanks, man. चलो विजुअल कर लेते हैं. Thank you.